study now the new topic quadrilateral. Quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़ा था कि भाई क्या है, एक ऐसी क्लोज फिगर, एक सिंपल क्लोज फिगर प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स, फोर लाइन्स, फोर लाइन सेगमेंट्स. For example, A, B, C, D is a quadrilateral in which pair of adjacent sides are there. Adjacent sides की बात करें तो AB and BC, second BC and CD, third CD and AD, और fourth AD and AP. These are the four sides which have common vertex. Suppose AB and BC have common vertex B, BC and CD have common vertex C, CD and AD have common vertex D. इसकी अपोजिट साइड्स के दो ही पेयर हैं. अपोजिट साइड्स की बात करें तो ए बी एंड डी सी एंड ए डी एंड बी सी. एंगल्स की बात करें तो देयर आर फोर एंगल्स, फोर वर्टेक्स इन इट. ए बी सी डी आर इट्स फोर एंगल्स एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल A plus B plus C plus D is always equal to 360, and this property of quadrilateral is known as angle sum property of quadrilateral. Angle sum property of quadrilateral. If we want to prove that the sum of these four angles is 180, we have to join one diagonal. Suppose we are joining AC and we mark these angles 1, 2, 3 and 4. So in both triangle, in triangle ABC, the angle 1 plus B plus 3 is equal to 180, and in triangle ADC, angle 2 plus 4D plus 4 is also equal to 180. If you add all these two equations, you will get the 1 plus 2 plus B plus D plus 3 plus 4 is equal to 180 plus 180. From here, the angle 1 plus 2 can be written as angle A. Similarly, B, angle 3 plus 4, it combinedly forms C, and D 360. This is known as angle sum property of the quadrilateral, and it can be proved by joining one of its diagonal. We get two triangles. The sum of angles of a triangle is 180. इसका यूज करके आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वी कैन प्रूव इट. अब हमारी दो टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. वन इज कॉनकेव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स. ये जो क्वाड्रिलेटर है जिसके सभी एंगल्स
180 से कम है, और एक ये ट्रायंगल है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, क्योंकि ईच एंगल इज लेस देन 180, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो जिस क्वाड्रिलेटरल का हर एंगल 180 से कम है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। और इस क्वाड्रिलेटरल को देखें तो इसका ये एंगल मोर देन 180 है, क्या है, मोर देन 180, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, जिसका एक एंगल, उस वन एंगल इज मोर देन 180, इसे हम कॉनकेव कहते हैं। सभी एंगल्स का सम 360 होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम एक्सरसाइज 8.1 के सम्स करने के लिए कर सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल इफ four angles of a quadrilateral are in ratio 2 ratio 3 ratio 5 ratio 8, find all the angles. Suppose this is the question in which four angles of the quadrilateral are in ratio 2 ratio 3 ratio 5 ratio 8. Then first of all let first angle, एंगल A 2x, एंगल B हो गया 3x, एंगल C 5x और एंगल D 8x। इफ वी नेम दिस क्वाड्रिलेटरल एज ABCD, तो इसके चार एंगल्स ABCD होंगे, हमने राइट कर लिए, 2x इस रेशियो में होंगे। नाउ using angle sum property of the quadrilateral, the sum of all angles 2x plus 3x plus 5x plus 8x is equal to 360. Adding 2 plus 3 plus 8, it will become 18x is equal to 360, and hence value of x from this 360 upon 18 we will get 20 degree. It means that angle A becomes 2 into 20, that is 40 degree. Similarly 3x, so 3 into 20, it is 60 degree. It is 5 into 20, it will become 100 degree, and here 8 into 20 160. तो इस तरह से ये सभी एंगल्स आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड कर सकते हैं अगर इन चारों एंगल्स का रेशियो गिवन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एंगल्स का रेशियो गिवन हो। मान लीजिए एंगल्स गिवन है, दो आपसे डिफरेंट वे में जो है किसी सम्स को पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स का सम, ये दो एंगल्स आपको गिवन है। सपोज ये क्वेश्चन है कि इफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and remaining two angles are of 70 degree and 110 degree. Find all angles, या find each angles. Angles of quadrilateral. तो अब यहाँ दो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, बाकी दो हमें गिवन है। तो पहले दो एंगल्स क्योंकि इक्वल हैं तो लेट
ईच इक्वल एंगल हम सपोज कर लेते हैं each angle which are equal x degree. Then by the angle sum property x plus 70 plus 110 is also equal to 360. You can write the reason here by angle sum property of quadrilateral in short form. यहाँ से x plus x becomes 2x plus ये बन गया 180 is equal to 360. So 2x is equal to 360 minus 180, and hence the value of x from here is 90 degree. इसका मतलब each equal angle have the measurement of 90 degree, and hence four angles are 90, 90 degree, 70 degree and 110. So using this property, if you have two angles or three angles and you want to calculate the fourth one, easily can be calculated. Now we are talking about the types of the quadrilateral. We are just studying about the types of the quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स है उसमें है नंबर 1 ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो इसमें नंबर 1 है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या होगा, पैरेलल. तो ट्रेपीजियम है जिसमें चारों साइड है बट वन पेयर पैरेलल है. इसमें ए बी पैरेलल डीसी एंड एडी एंड बीसी आर नॉन पैरेलल साइड्स. नॉन पैरेलल साइड्स. तो जिस क्वाड्रिलेटरल में केवल एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम. और ट्रेपीजियम के अगर इन एंगल्स को देखें तो एंगल ए और डी, इसके अंदर इनका सम 180 होगा. जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोइंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इनका एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल्स. तो क्योंकि इनको इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो इसलिए ए प्लस डी का सम 180 होगा. और क्वाड्रिलेटरल में बी प्लस सी का सम भी 180 होगा क्योंकि ये दो पेयर हैं सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स. बाकी जो दो पेयर हैं ए और बी इनका सम हम नहीं जानते 180 है या नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द साइड्स. सेकंड जो टाइप है वो है पैरेललोग्राम. शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं पैरेलल जीएम, पैरेललोग्राम को. अगर दोनों पेयर, इसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है, अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं तो भी ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम. इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की. इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं. इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अगर हम पढ़ें तो नंबर 1, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Third, sum of adjacent angles of a parallelogram is 180.
Fourth, diagonals of parallelogram bisect each other. तो इसके जो डायगोनल्स हैं ये भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके। तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम a प्लस b या b प्लस c या c प्लस d या a प्लस d, ये चार पेयर एडजेसेंट एंगल्स के, इन सभी पेयर में एडजेसेंट एंगल्स का सम का जो है 180 होगा। इसके एक और प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना चाहते हैं तो केवल एक पेयर, यानी इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of quadrilateral is equal and parallel, then it is called parallelogram. तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आप एक पेयर अपोजिट साइड्स के को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। दूसरा पैरेललोग्राम प्रूव करने का, अगर उसके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को ये पैरेलल बाइसेक्ट करते हुए दिखा देते हैं, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो भी पैरेललोग्राम होगा। तीसरा तरीका है पैरेललोग्राम प्रूव करने का कि अगर अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस और इस मेथड का यूज करूंगा। कभी भी मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो या तो मैं ये करूंगा कि एक पेयर उसका अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है या ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैंने इसमें ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव कर दिया मान लीजिए, एंड ए बी और सी डी को पैरेलल भी प्रूव कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम है। या इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हुए दिखा दिया तब भी ये पैरेललोग्राम है, या इसके दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल प्रूव कर दिए, तो ये पैरेललोग्राम है। टुमारो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10। इसमें आपको या तो ये प्रूव करना होगा कि एंगल्स फाइंड करने के क्वाड्रिलेटरल के, या प्रूव करना होगा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के किसी भी उसको प्रूव करने के लिए, आप किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आप एक डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, और अगर आपने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो आपके पास दो ट्राइंगल आएंगे, ट्राइंगल ए बी डी और बी सी डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, इसकी हर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, पैरेलल भी हो सकती है इससे, इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट, उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है। टुमारो वी विल कंटिन्यू with the type of the parallelograms. We will discuss the types of parallelogram and how can you prove the parallelogram becomes rectangle, or how can it form a rhombus, or how can it form in square. That's all.